Hi guys, this is Durga Prasad. I am again present in front of you with the session of question answer for NET JRF in the subject of economics. So in the last week I was not well, so the continuation was disturbed. Now I am well, so I hope that the continuation will carry on. So without losing of time, let's start our topic and session. If I talk about the question of the session, then our first question is that in which forum the largest percentage of national income is earned. Choose a correct one from the given code. Okay, so your option is given here. The A is interest income, B is proprietary income, C is employees wage, and D is rental income. So what would be the your correct answer and option? Your correct option is employee wage, because in the form of the employee wage the largest percentage of national income is earned. Okay, if I talk about the number way, that is the interest income. So what is the interest income? Interest income can be defined as that the money earned by you can say that an individual or a company for lending their funds, either by putting them into depositing account or in a bank or group of banks. Okay, and what is the proprietary income? Proprietary income, you can say that the total income that is earned by proprietors, which may be earned by both forum or non-forum business. Okay, non and what is the rental income? The rental income, you can say that the amount of money collected by a landlord from a tenant or a group of tenant for using their particular space or a particular ownership of a particular house, particular farm, any kind of stuff. Okay, so your correct option is C. And why C? What is the employee wage? What is the employee wage? Is rewarded by a producer for doing any activity in her business or in a farm or industry. Okay, moving on next question. The next question is a significant property of Coriolis production function is the elasticity of function is that the elasticity of substitution between input is. ठीक है, वो बोल रहा है कॉर्योलिस प्रोडक्शन फंक्शन के जो इनपुट हैं लेबर और कैपिटल, उनके जो सब्स्टिट्यूशन के का जो इलास्टिसिटी है वो कितना है. ठीक है, आपके ऑप्शन है ये इक्वल टू 1, मोर देन 1, लेस देन 1 एंड 0. सो वी ऑलवेज डिनोट द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बाय सिग्मा चेंज इन के बाई एल एंड चेंज इन के बाई एल. ओके, सो इसके होल अपॉन होगा आपका चेंज इन एम आर टी एस, चेंज इन एम आर टी एस और एम आर टी एस. ओके, तो ये आपका ये चेंज इन ए पी के एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और चेंज इन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर. ओके, और ये के बाई एल जो आपका है वो चेंज इन, ये तो एवरेज पूरा दिखा रहा है. ठीक, तो ये भी आपका एवरेज दिखा रहा है, तो ये और ये कैंसिल हो जाते हैं और चेंज इन एम आर टी एस और चेंज इन के बाई एल ये भी कैंसिल हो जाते हैं. आप जब डिराइव करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और इसलिए यहाँ पे आपका एक आता है. तो आपका ये जो ऑप्शन है वो इक्वल टू 1 होगा. ओके, मैं यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. उसके लिए फिर मैं एक अलग से वो सेशन लेके आऊँगा, इसमें कॉर्योलिस की पूरी प्रॉपर्टी, उसका फंक्शन को डिराइव करने का वो सब कुछ बताऊँगा आपको. तो एंड मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is which one is not a
assumption of the theory of demand based in analysis of indifference curve. Okay, choose correct option from given quotes. Okay, so ये बोल रहा है कि जो डिमांड की थ्योरी है, मांग की जो थ्योरी है, वो जो इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी पर बेस है, उसमें से कौन सा एजम्पशन वो मांग की थ्योरी को पूरा नहीं करता है, जो ठीक है. सो योर ऑप्शन इज number 1 is given a scale of preference is between different combination of two goods, diminishing marginal rate of substitution, constant marginal utility of money, consumer would always prefer more of particular goods to less of it, with while ceteris paribus. ceteris paribus आपका मतलब पता ही होता है कि other thing remains constant, this. Okay, so what is your answer? Your option is C, constant marginal utility of money, because constant marginal utility of money is not a assumption of theory of demand that is based on the analysis of difference curve. Okay, in indifference curve represent always a graph that show a combination of two goods that gives a consumer equal satisfaction or utility. Okay, thereby making a consumer indifferent. Okay, क्योंकि ये जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है ये ऐसे होता है, ठीक, नाइदर टच विथ एक्स नाइदर टच विथ वाई. सो ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, ना कि डिमांड की थ्योरी की. ओके, ना ही कि प्राइस और डिमांड के बीच रिलेशन को बताता है ये. ओके, तो आपका ऑप्शन सी है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन. The budget line is also known as ओके, एज के बाद ये आपके ऑप्शन है, चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स. ओके, सो आवर ऑप्शन इज आइसो यूटिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन, आइसो क्वांट, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन. ओके, सो व्हाट इज आवर आंसर? आवर आंसर इज डी. ओके, बिकॉज the budget line also known as the consumption possibility line. You can say that CPF, that is consumption function, consumption possibility line या function, or consumption possibility frontier is the budget constraint where the participant is international trade can consume. Okay, this is your answer. Your next question is, in case of perfect competition in the market, okay, in case of perfect competition in the market, क्या होता है जब मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होती है? तो क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड. ओके, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड. Marginal slope is always equal to average revenue, and then D is marginal revenue is always less than average revenue. So what would be your option? Your option is C, marginal revenue is always equal to average revenue. परफेक्ट कंपटीशन में ये आपका जो होता है ऐसे होता है, और क्या बोल रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, सॉरी,
ये जो आपकी लाइन होती है एकदम इसके पैरेलल जाती है और ये ए आर इक्वल टू एम आर होता है, ठीक। तो ये ए आर जो है वो डिमांड करो ये बता रही है परफेक्ट कंपटीशन का, ओके। सो योर ऑप्शन इज सी, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में होता क्या है कि दे कॉन्साइड बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ओके। एवरी आउटपुट पे मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों इक्वल होते हैं, ठीक। और ये कंडीशन सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन ही पाई जाती है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर द प्रॉफिट ऑफ फर्म टू बी मैक्सिमम, चूज अ करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन कोर्स, ओके। आपकी पहली शर्त पूछी जा रही है जिसमें किसी भी फर्म की प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन क्या है, पहली शर्त क्या है, ठीक। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं ए सी इक्वल टू एम आर, बी एम सी इक्वल टू एम आर, सी एम आर इक्वल टू ए आर और डी ए सी इक्वल टू ए आर। तो आपके ऑप्शन है बी एम सी इक्वल टू एम आर, क्योंकि फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल it state that कि if a firm choose a maximum if a firm wants to have its maximum profit, then it must be that level of output where marginal cost should be equal to marginal revenue, okay, and the marginal cost curve is rising। ये देखिए, ये आपका होता है, ठीक। यहाँ पे आपकी क्या होगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगी, ठीक। ये कंडीशन यही है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अदर नेम दैट इज गिवन एवरेज रेवेन्यू कर्व, ओके। चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। सो ऑप्शन देखते हैं क्या है। हमारे पास ऑप्शन है प्रॉफिट कर्व, डिमांड कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व, इंडिफरेंस कर्व। ऑप्शन क्या होगा, डिमांड कर्व। आपके मैंने परफेक्ट कंपटीशन वाले क्वेश्चन बताया था कि ये जो हमारा ए आर होता है वो डिमांड कर्व को ही बताता है, ठीक है। डिमांड कर्व का दूसरा नाम ए आर कर्व ही है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑफन कॉल्ड एज डिमांड रेवेन्यू कर्व ड्यू टू इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिमांड इन द मार्केट, ओके। सो योर ऑप्शन इज बी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one is the condition for existence of monopoly market among the following, ठीक। choose correct action from the given codes। which one is the condition for existing monopoly in the market among following, ठीक है। इन सारे जो मोनोपोली मार्केट में कौन सी ऐसी स्थिति है जो यहाँ पे दी गई है, ठीक। कौन सी ऐसी स्थिति पाई जाती है, कौन सा कंडीशन पाया जाता है, ठीक। ऑप्शन है आपका बिग साइज का मार्केट होता है, बिग साइज इसमें होते हैं। बिग साइज इन द सेंस की फॉर्म जो है वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक। आइडेंटिकल या उस फॉर्म में आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है, या ऑब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस होता है, गवर्नमेंट उस पर कोई टैक्स नहीं लगाती है, या नो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। ये आपके ऑप्शन है। तो आपके ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन क्या है, डी, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। बिकॉज for the existence of monopoly condition there is a absence of existence of substitute goods, okay। if a closed substitute exists then monopoly cannot exist, because monopoly can only exist when cross elasticity of product that a monopolist
products produce a 0. Okay. Your next question is, among the following in respect of the average cost curve, which statement is true? ठीक, एवरेज कॉस्ट, ठीक, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, चूज करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। देखिए ऑप्शन आपके ए टी सी प्लस ए बी सी इजकल टू ए एफ सी, मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इजकल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्या ये ऑप्शन सही है? इसी तरह सारे हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट प्लस एम सी मतलब मार्जिनल कॉस्ट एफ सी, ठीक। और अब देखिए आपके ऑप्शन कौन से हैं, आपके ऑप्शन है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इजकल टू एवरेज टोटल कॉस्ट, बिकॉज it is average total cost that is divided into two parts. First one is average fixed cost and second one is average variable cost. Average variable cost is that cost which increases as the labor or machine which is indulged in the production increases. Okay, कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी वस्तु का उत्पादन होता है उस वस्तु के उत्पादन के साथ ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, और एवरेज फिजिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है विच इज ए फिक्स्ड इन नेचर विदाउट एनी प्रोडक्शन ऑफ एनी सिंगल यूनिट, इट इज़ अकर्ड ऑन देम, क्योंकि बिना किसी प्रोडक्शन के भी ये उन पे कॉस्ट लगता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक। Your next question is, among the following in respect of the structure of market, law of return applies to firms working in, ठीक, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसमें लॉ ऑफ रिटर्न का जो सिचुएशन है वो किन मार्केटों में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न अप्लाइज टू द फर्म वर्किंग इन। ओके, आपके ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन, बी मोनोपोली, सी स्मॉल फर्म एंड डी ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट सिचुएशन। ओके, तो योर ऑप्शन इज डी ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट सिचुएशन, बिकॉज लॉ ऑफ रिटर्न अप्लाइज टू फर्म वर्किंग इन ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट। विदाउट लॉ ऑफ रिटर्न नो producer or entrepreneurship would have enthusiasm to do or to produce anything. Okay, without a profit nothing is going to happen in any kind of market, even production or even consumption. Okay, so a firm with production function could be exhibit different types of return. Okay, so it is sustained in all kinds of market situation. So this is your all 10 question here that I have discussed. So thank you for being with us.